मैं बात कर रहा था बकिंघम स्पाई मेथड की। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रिलेक्स मेथड में एक लिमिटेशन है। वो मेथड हम नहीं यूज कर सकते व्हेन वी हैव मोर देन 4 वेरिएबल्स। ठीक है, यूज कर सकते हैं बट उसकी कॉम्प्लिकेसीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। हाउ टू सॉल्व द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। व्हेन वी हैव द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मोर देन 4, so we can easily use the second method of dimension analysis, that is Buckingham's pi method. Okay. So in this method, there is no limitation of variables. So you can use this method for any number of variables. Okay. Now this method is based on one theorem that is called Buckingham's theorem. Okay. The another name for that theorem is pi theorem. Okay. Now the statement is, it states that if a physical phenomena involves n quantities, okay, or variables, both independent and dependent, okay, both independent and dependent, and m fundamental dimensions. Now the n quantities, these n quantities can be arranged into n minus m independent dimensionless terms or groups. Okay, so according to this statement, if you have n variables, so that n includes both dependent and independent. So you have m fundamental dimensions. So you can group all those n quantities into n minus m independent dimensionless terms. Okay, so this method is based on this theorem. Okay, now here this n minus m independent dimensionless terms, these are also called pi terms. Okay, these are also called pi terms. So let us say we have quantities x1, x2, x3, and so on up to xn. Okay, and these quantities involve m dimensions. Okay, so we can write, or you can say we can group all these quantities into dimensionless terms that we call as pi terms. So we can write one functional relationship between those pi terms as pi 1, pi 2, pi 3, and these pi terms are up to pi n minus m. Okay, so we can write a functional relationship between them by using this Buckingham's pi method. Okay, now next we see how we determine these pi terms. ये pi terms हमारे पास कैसे आएंगी अब?
हम उन जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उनको इस मेथड को यूज करके किस तरह से क्लब करेंगे. ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन द स्टेप्स. यू कैन सी नाउ द steps for pi method or Buckingham's pi method. The first step is, now select m number of quantities out of n quantities ठीक है, in such a way that they have different dimensions and contains m fundamental dimensions. Okay, so we have total n quantities, n variables. So out of those n variables, we select m number of quantities. So m number of quantities, the m is equal to the number of fundamental dimensions. So in quantities में जितनी fundamental dimensions हैं, so normally this m equal to 3, mass, length and time. So out of these n, we select 3 variables. We select 3 quantities. तो उनका selection का method क्या होगा? The first method says it must contain different dimensions. Okay, those 3 quantities must contain different dimensions. Different dimensions means, now let us say one physical phenomena. In that phenomena, we have variables like length and height. Okay, so both length and height have dimensions L. So according to first step, you can choose one quantity out of length and height. Okay, so m के अंदर जो आपने 3 क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, उनमें लेंथ हाइट दोनों नहीं हो सकती. आउट ऑफ दोज 2 यू हैव टू सिलेक्ट वन. ठीक, नो दिस इज स्टेप 1. So out of n, you have to select 3 quantities. Okay, now the step 2 is use these selected m number of quantities as repeating variables. Now those selected m quantities that are called repeating variables. Repeating variables means इनको हम बार बार यूज करेंगे for determining the pi terms. Okay, so use these selected m number of quantities as repeating variables to determine pi terms. Okay, now this is done by associating them with one of the other quantity to form pi term. ठीक है, सो मान लीजिए आपके पास n क्वांटिटीज हैं, n में से आपने m सिलेक्ट कर ली. तो नॉर्मली m इज इक्वल टू 3. तो वो जो सिलेक्ट आपने करी है, बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज हैं, लेट रिमेनिंग क्वांटिटीज हियर वी हैव n5, 1 2 3 4 5.
So out of these five, we select say one, we select three and four. So these are three M. So with these three, with one, three and four, okay, I associate second to form one pi term. Then again with one, three, four, I associate five to form another pi term. Okay. Now these two steps are clear. सर ये एम एम क्या बताया लास्ट में बताना था आपने ये 1 2 3 1 हाँ जी बच्चे. लास्ट में क्या Now बताया let सर us आपने say, मैं इसको दोबारा अगर रिपीट करूं, मैं अगर दोबारा रिपीट करूं, से n इज इक्वल टू 5, x1, x2, x3, x4 एंड x5. ठीक है. इन पांच क्वांटिटीज में से मैंने m3, सो n इज इक्वल टू 5, m इक्वल टू 3, थ्री क्वांटिटीज मैंने सेलेक्ट कर ली. लेट अस से दैट इज x1, it is x3, it is x4. So these three are my repeating variables, x1, x3 and x4. तो बाकी कौन सी रहेगी आपके पास? इसको एक बार आप x2 से कंबाइन करोगे, that give you one pi term. The second time x1, x3, x4, और उसको हम कंबाइन करेंगे the remaining term x5, that give you second pi term. So according to pi theorem, n equal to 5, m equal to 3, so you have n minus m pi terms, so that is equal to 2. This is how you can find out pi 1 and pi 2. ठीक है. ओके. ठीक है बेटा, आगे चलें. अभी वो जो Yes, sir. पूछ रहा था बेटा बच्चा. यस सर आगे Okay, okay. So in this case, so your n is 5, m is equal to 3. I can write pi 1 as equal to x1 into x2, sorry, x3 into x4, and combining one remaining term, x2. Similarly, I can write pi 2, that is equal to x1, x3, x4 into x5. ठीक है. Now further, I can write here pi 1 as x1 raised to power a1, x3 raised to power b1, x4 raised to power c1. These are the exponents. जैसे एक्सपोनेंट हमने रिलिक्स मेथड में यूज करे हैं. ठीक है. सिमिलरली हियर a2, b2 and c2. Okay, so we can write pi terms and the variables into a functional relationship, something like this. Okay, now in next step, that is step number 3, we have to find out these exponents. So find the exponents of each pi term on the assumption that each term is dimensionless. Okay, so that means by putting the dimensions of x quantities in the above equation. Okay, so that means your pi term is the dimensionless term, so you can write it as mo, m0, l0, t0 equal to, now you have the dimensions of x1, you have some dimensions for x1 mlt, similarly for x3 this is a1, you have mlt some dimensions b1,
For x4, you have some dimensions in MLT raised to power C1, and then some MLT dimensions for x2. Okay, so on the basis of this, you equate the powers of exponents on both sides for m, for l, for t, and then try to find out the values of a1, a2, a1, b1, and c1 from three equations. So you can easily find out a1, b1, and c1. So after that, you put the values here a1, b1, c1. Okay. So this is your pi 1. So you got one pi 1 term. Okay. So this is your Buckingham's pi method. Now the problem in this method is how to select the repeating variables. How we select these m equal to 3 variables. Okay. Now for selecting repeating variables, we have certain set of rules. Okay. So next is the selection of repeating variables. Now here the first rule is they must contain all the fundamental dimensions. Okay. So let us say your n equal to 5. Your that 5 are x1, x2, x3, x4, and x5. Okay. So out of these three, or these five, m equal to 3. So say that are कौन से हमने चूज किए थे x1, x3, x4. Sir, एक मिनट बेटा, एक मिनट. ठीक है. Now the first rule says that these three terms must contains all the fundamental dimensions. मतलब ऐसा ना हो कि इसमें आप इस तरह की क्वांटिटीज चूज कर लो जिसमें सिर्फ L और T डिमेंशन ही रह जाए. मान लीजिए एक लेंथ आपने सिलेक्ट कर लिया, एक हाइट सिलेक्ट कर लिया और एक वेलोसिटी सिलेक्ट कर लिया. सो देन M इज मिसिंग. ठीक है. सो यू सिलेक्ट those quantities which contains all fundamental dimensions. That is the first rule. हाँ बेटा, आप बोलो आप. मतलब sir m हमेशा 3 ही होगा. M हमेशा 3. आप वो डिपेंड करेगा इन क्वांटिटीज में कितनी फंडामेंटल डिमेंशन है. अगर ये सभी की सभी क्वांटिटीज में L और T डिमेंशंस हो तो 2 हो देन योर जाए. M इज 2. 2 हो ओके जाएगा. सर. ओके सर. ओके. ठीक है बेटा. दिस इज द फर्स्ट रूल. Yes sir. देन द सेकंड रूल इज any two of the repeating variables should not have same dimensions. Two repeating variables should not have same dimensions. ठीक है. तो इसमें x1 x3 या x1 x4 या x3 x4 इनकी डिमेंशन जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. दैट इज द रूल नंबर 2. द रूल सर नंबर 3 फोर्स और सेज नॉर्मली. हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे बोलो सेकंड बोलो. सेकंड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स और लेंथ ले सकते हैं. दोनों में L कॉमन है लेकिन डायमेंशन सेम नहीं है. नहीं है. हाँ, ले सकते हैं. ओके सर. एग्जैक्टली सेम नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया लेंथ और हाइट. यस सर. ठीक है ना. लेंथ और हाइट दोनों की डायमेंशन सेम है तो उनमें से एक ही पार्ट आएगा, एक ही वेरिएबल आएगा. ओके सर. ठीक है. देन द थर्ड रूल इज नो नॉर्मली डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल
ठीक है, वी कांट सिलेक्ट इट एज ए रिपीटिंग वेरिएबल। ठीक है, एक मैंने जो अभी रिलेक्स मेथड में आपको एग्जांपल दिया था सॉल्व करने के लिए, उसमें आपने किसके लिए रिलेशन फाइंड आउट करनी थी? ड्रैग फोर्स के लिए। ठीक है ना एग्जांपल, अगर मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है। यस ड्रैग यस सर। ठीक है ना, ड्रैग फोर्स तो हाँ, ड्रैग फोर्स, नाउ योर ड्रैग फोर्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर वही सिचुएशन, वही क्वेश्चन आपको थिंगम्स पाई मेथड से सॉल्व करना है, देन you can't select drag force as a repeating variable. ठीक है, so that is rule number 3. The dependent variable can't be selected as a repeating variable. Okay, then rule number 4. Now in fluid flow problems, ठीक है, in fluid flow problems it is better to choose one variable from geometric quantities, ठीक है, one variable from kinematic quantity and one variable from dynamic quantities. ठीक है, तो ये काफी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जैसे आपके पास N5 है, M3 3 वेरिएबल्स आपने सिलेक्ट करनी है, तो इन 5 में से यू सिलेक्ट वन ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, सेकंड काइनेमेटिक क्वांटिटी और थर्ड डायनामिक क्वांटिटी। ठीक है ना। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज्योमेट्रिक क्वांटिटी इसमें दो आ रही हो, लेंथ एंड डायमीटर। ठीक है, तो वो अब वहां तक हम नहीं जाएंगे। एक्चुअल में दैट डिपेंड्स के इन दोनों वेरिएबल में से कौन सा फैक्टर है, कौन सा वेरिएबल है जो हमारे फिजिकल फिनोमिना को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। सो दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू फिनोमिना की बात करें। ठीक है, विस्कस फ्लो मींस द लैमिनार फ्लो। ठीक है, सो अगर लैमिनार फ्लो में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, म्यू, ठीक है, विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी। ठीक है, so in viscous flow, in laminar flow, mu is much more important as compared to rho. ठीक है, however in turbulent flows viscosity का impact ज्यादा नहीं होता। ठीक है, so over there you can select rho as compared to mu. ठीक है, तो बट ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं, you have to see, you have to perform some experiments on that particular physical phenomena and only then you can suggest which variable is more affecting on the phenomena. ठीक है, तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा वहां तक। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। ओके, समझ आया यहां तक कुछ? यस सर ये पॉइंट 3 क्या था? सो दीज आर ठीक दी से सुनाई नहीं दिया था सर, पॉइंट ये 3 पॉइंट बेटा, 3। जो मैंने आपको एग्जांपल, हाँ पॉइंट 3 ये वाला। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप उसको देख सको, अगर है आपके पास जो क्वेश्चन, अगर आप उसको खोल के देखो, ठीक है, तो उसमें आपके पास वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स जो है, यू हैव टू फाइंड अ ड्रैग फोर्स। योर ड्रैग फोर्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड द अदर वेरिएबल्स, डायामीटर है आपके पास, वेलोसिटी है आपके पास, डेंसिटी है, म्यू है। ठीक है, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अब आपने एफ के लिए रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब एफ को एज ए रिपीटिंग वेरिएबल आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। ओके सर। Okay, so now I stop here. This is all about the method. ठीक है, so the main thing in pi method is how to select repeating variables. ठीक है, तो इसके साथ you can easily find out the pi terms. ठीक है, now अब
पाई टर्म्स के बीच में यू कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश वन रिलेशनशिप, ठीक है, यू कैन एस्टेब्लिश some relationship also between those pi terms. So for establishing a relationship, we can apply some alterations. ठीक है, alterations on pi terms. So those alterations are, the one is any pi term can be multiplied by another pi term to get one pi term. ठीक है, so any pi term can be multiplied by another pi term to get one pi term. ठीक है, so this is one alteration. दो पाई टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आप एक पाई टर्म लिख सकते हो, ठीक है. The second is any pi term can be replaced by any power of the term. Any pi term can be replaced by any power, okay, of the term. मतलब you can write pi1 as pi1 square, ठीक है, और pi1 raised to power -2 और pi raised to power 1/2, something like this. ठीक है. Then the third is any pi term can be replaced by a new term obtained by multiplying or dividing the term by a numerical constant. ठीक है, so for example you have pi1, you can replace it by pi1/2, pi1/6, ठीक है, 3 pi1, 8 pi1, something like that. ठीक है, so any pi term can be replaced by a new term obtained by multiplying or dividing the pi terms by a numerical constant. Okay, so these are few alterations that we can apply to reach the required result. Okay, so this is all about the pi method. So in next class we take one example based on this method. Okay, तो अब आपने कुछ पूछना है, you can ask me please. सर ये अल्ट्रेशन के बारे में Otherwise दोबारा आप बताना, attendance में upload. ये मतलब इनका क्या काम है, अल्ट्रेशन का? आप पाई टर्म्स फाइंड आउट कर लोगे पाई मेथड से, ठीक है. नॉर्मली हमारा पर्पस क्या होता है जब आपके पास कोई फिजिकल फिनोमिना होता है, ठीक है, हमारा पर्पस ये है कि हम उसके लिए कोई ना कोई एक मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है, या मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डेवलप कर सके, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई एक इक्वेशन बना सके, ठीक है. तो पाई टर्म्स को आप फाइंड आउट कर लोगे मेथड से. अब उन पाई टर्म्स में आगे आपने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है. तो वो रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कैसे करोगे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको जो फार्मूला है उसके फॉर्म में, कुछ पावर्स की फॉर्म में, कुछ अंडर रूट की फॉर्म में, इस तरह से लेके आना पड़ेगा ना उन पाई टर्म्स को, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे पास फिजिकल फिनोमिना अवेलेबल है उसमें हमें ये पता होता है कि ये वेरिएबल्स हैं जो इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं. हमने पाई टर्म बना ली. पाई टर्म बनाने के बाद, ठीक है, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि वो पाई टर्म्स एक दूसरे के किस तरह के रिलेशन में वेरी कर रही है, ठीक है. तो उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे और जो इक्वेशन हमारे पास डेवलप हुई है, क्या वो सही आ रही है? अगर नहीं आ रही देन वी अगेन चेंज. तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जो इस तरह से यूज करते रहते हैं. तो अल्टीमेटली वी रीच एट सर्टेन फिक्स्ड इक्वेशन कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, जो इस इक्वेशन से हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, वो दोनों मैच हो रहे हैं.
ठीक है, तो जो रिलेशन आप, जो मैथमेटिकल मॉडल आप यहां से फॉर्मुलेट कर रहे हो, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट के साथ उसको वेरीफाई करना है। अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहे, अल्टरेशन का मतलब अगर कहीं ने आपने एक पाई टर्म आई उसको 2 टाइम्स पाई 1 लिख लिया, ठीक है, तो क्या वो आपके एक्सपेरिमेंट से मैच हो रहे हैं रिजल्ट जो आपके एक्चुअल रिलेशन से आ रहे हैं? नहीं आ रहे, दैट मीन जो आपने चूज किया है दैट इज रॉन्ग। नाउ यू टेक 2.5, ठीक है, सो अल्टीमेटली यू रीच एट ए वन मैथमेटिकल मॉडल, फाइनल रिलेशन। ठीक है, कुछ समझ में आया बच्चे? नहीं अभी भी? हेलो, यस सर। सो एनी अदर, कुछ और पूछना है बेटा यहाँ तक, और फिर इसके बाद यही स्टॉप करेंगे। जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो एग्जिट कर सकता है बच्चे। सर न्यूमेरिकल भी आज ही कर लेते हैं, 5-10 मिनट में हो जाए तो। मैं जो कुछ बच्चों को ज्वाइन करना होगा, सर आप मेरे दे को, दो न्यूमेरिकल, हम ट्राई कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं नोट करवाता हूँ, ठीक है, यू कैन नोट डाउन ग्रुप वन पे शेयर कर क्वेश्चन। दो सर, ठीक है, ग्रुप पे शेयर कर देना। मैं आपको वेरिएबल बताता हूँ, ग्रुप पे मैं शेयर कर लूंगा। देयर इज ठीक है वन ठीक है। एग्जांपल जो हम फ्लूइड मशीन्स में यूज करेंगे टर्बाइंस के अंदर, ठीक है, उन्हीं की पाई टर्म हम डेवलप करते हैं। हाँ, ठीक है, नाउ आई राइट हियर वन एग्जांपल। सो लेट अस से वी हैव डिस्चार्ज Q, ठीक है, through a rotating system depends upon, this Q depends upon head, this is discharge, depends upon head, okay, it depends on speed, okay, it depends on power, ठीक है, density, ठीक है, it depends on viscosity, ठीक है, and diameter। ठीक है, कोई भी एक रोटेटिंग मशीन है आपके पास, सो इन दैट रोटेटिंग मशीन जैसे टरबाइन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, तो उनमें डिस्चार्ज इज द मेन फैक्टर कि कितना डिस्चार्ज जो है वो टरबाइन में एंटर कर रहा है, कितना डिस्चार्ज आपको पंप की आउटलेट पे अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज जो है वो इन कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, हेड, स्पीड, हेड मींस द हाइट, डिटेल में हम पढ़ेंगे टरबाइंस और पंप के अंदर, स्पीड, पावर, डेंसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, डायामीटर। सो नाउ वी हैव established one relationship that Q divided by ND cube is a function of GH upon N, okay, P upon rho G H N cube and mu divided by rho N D square। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये रिलेशन जो है वो अब हमने एस्टेब्लिश करनी है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप देखो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सो n इक्वल टू 7, ठीक है, तो इस पे अब रिलेक्स मेथड लगाना तो आसान नहीं है, सो वी कैन अप्लाई हियर द बकिंगम्स पाई मेथड। सर एन ठीक है, सिक्स तो अब एक चीज और आप इसमें सर एन क्यों भी सिक्स होता है, है। यू हैव टू सिलेक्ट अच्छा क्यों? 6 किसे,
1 2 3 you have to n is equal to both dependent and independent variable. ठीक है सर। ठीक है, आई थिंक 7 हो गए, क्यू एच हाँ, क्यों को मिला कर 7 है। 7। ठीक है, हाँ। अब आप इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ठीक है, सो दैट इज नॉट वन वेरिएबल बट एक टर्म और आपके पास आ रही है, दैट इज जी, जो ऊपर कहीं इंक्लूड नहीं हो रही। सो यू हैव आल्सो इंक्लूड इन दिस, सो हियर योर n इज 8। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अगर g इस रिलेशन में नहीं है, सो देन n इन 7। अगर रिलेशन में आ रही है कहीं, so then you have to use it as one another variable as 1, so n is 8। otherwise वो आपके पाई टर्म्स में g आएगी नहीं। ठीक है, Yes. so here m is, what is m here now? क्योंकि अब जितनी भी क्वांटिटीज आपके पास अवेलेबल है उनकी डायमेंशन आप देखो, सर तो तीनों स्पीड, डायमेंशन आपके विस्कोसिटी, पास आ रही है उसमें। पावर और हेड। हाँ, इन सभी में मास, लेंथ और टाइम आएगा, सभी में नहीं, यस मतलब सर। जैसे डायमीटर में l आ गया, ठीक है, विस्कोसिटी में mlt आएगा, पावर में कुछ m और l t में आपके पास डिमेंशंस आएंगी, सो दैट मींस m इज 3। ओके सर। ठीक है, सो हाउ मेनी पाई टर्म्स आर हियर? 5। n minus m, so 8 minus 3, there are 5 pi terms। ठीक है, so now you have to select repeating variables, so repeating variables are 3, that is equal to m। ठीक है, so you have to select now, so there is one parameter g also, so you have to select now 3 variables out of these 8। okay, so out of these 8 you have to select 3। अब वो कैसे सिलेक्ट करोगे? उसके लिए आपके पास जो रूल्स हैं उनको आप यूज करो। ठीक है, सो कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि अब इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस सर चाहिए होगा सिलेक्ट करने के लिए। सर ठीक है, बट हेड। एट दिस स्टेज, ठीक है, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। तो जो भी आप रूल्स को यूज करते हुए, ठीक है, वेरिएबल्स को सिलेक्ट करोगे और पाई टर्म्स आप कंबाइन करके बनाओगे, तो ऑलमोस्ट आपको, अगर हम हमारा फिजिकल एग्जाम होता तो नॉर्मली अगर कोई वो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सो यू गॉट इजीली गॉट 7 to 8 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट वेरिएबल्स चूज करे हैं जो एक्चुअल में उसको क्वांटिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, so then only you got full marks in this question। ठीक है, तो मेन जो मेन इसमें फंडामेंटल है वो यही है, यू सिलेक्ट 3 वेरिएबल्स, 1 फ्रॉम ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, 1 फ्रॉम काइनेमेटिक एंड 1 फ्रॉम डायनामिक। तो पहले तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी आप देखो कौन सी है। D। हियर आर 2, Yes one sir, is head, सर and डी diameter। स्पीड और ठीक है, one is head, one is d। ठीक है, अब टरबाइन और पंप के केस में इन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्चार्ज के लिए, दैट इज द डायामीटर, डायामीटर ऑफ दैट मशीन, डायामीटर ऑफ द रोटर और डायामीटर ऑफ द इंपेलर। ठीक है, हेड कोई भी अवेलेबल हो आपके पास, ठीक है, तो डायामीटर जो है अगर उसमें चेंज हो रहा है, दैट इम्पैक्ट ऑन द डिस्चार्ज मोर। ठीक, so here the one variable, one repeating variable is the diameter। सर ये भी ठीक है, हमें 3 ही चूज करने हैं। 3 चूज करोगे हम, ओके सर। 3 चूज करोगे ना। सर ठीक है, उस टाइम तो आपने देन m इक्वल टू 3 इसलिए लिखा क्योंकि m l t तीनों में कॉमन है, और अभी तो हम अब 3। या
यहाँ भी तो देखो ना आप, तीनों कॉमन है सभी, ये जो क्वांटिटीज हैं क्यू एन पी रो म्यू डी, ठीक है, यस जैसे सर। डी में लेंथ आ गया, ठीक है, यस सर। डिस्चार्ज में एल टी आएगा, ठीक है, पावर में एम भी आएगा, म्यू में एम भी आएगा, ठीक है, तो इन सभी क्वांटिटीज में कलेक्टिवली आपके पास एम एल टी डिमेंशन आ रही है, दैट मीन्स एम इज 3। ओके सर। ओके, अगर इन सभी में कलेक्टिवली एल और टी आ रही होती देन वी से एम इज 2। यस सर। ओके, so now out of now we have to select 3 repeating variables out of these total 8, ठीक है, और 1 कैनामेटिक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी हो गई हमारी, देन यू से 1 कैनामेटिक जिसमें एल और टी डिमेंशन हो, सर स्पीड ठीक है, सो एक ही इसमें स्पीड है और दैट जी इज से। एन, ठीक है। और एक अब जी। जो बाकी है रह गए आपके पास वो वेरिएबल्स जिनमें एमएलटी आ रहा है, डायनामिक, सर डेंसिटी। ठीक है, तो नॉर्मली डेंसिटी और म्यू में से हम चूज करेंगे, विस्कोसिटी। ठीक है, तो अब जो टरबाइन है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है दैट इज रनिंग एट ए हाई स्पीड, ठीक है, सो नॉर्मली उसमें जो फ्लो है दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो, तो तो विस्कोसिटी का उस पर डेंसिटी। ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, सो थर्ड वेरिएबल इज रो, ठीक है, सो दीज आर 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स। नाउ यू कैन फाइंड आउट पाई 1, ठीक है, सो पाई 1 एज फर्स्ट 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स डी एन रो एंड देन कंबाइन द रिमेनिंग वन क्यू हेड। से, फर्स्ट हमने कंबाइन कर लिया, कोई भी कंबाइन कर सकते हो आप, ठीक है, सो नाउ डी रेज टू पावर ए या A1 कह लो, B1 and C1. Now I write the dimensions M0, L0, T0, D having dimension L, D having dimension L raised to power A1, N having dimension M, L minus 3, B1, ठीक है, सॉरी मैंने रो पहले लिख लिया इसको, एक मिनट, इसको मैं दोबारा कर रहा हूं, ये किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, नो आई राइट फर्स्ट एन, राइट इट अगेन, ठीक है, तो इस तरह से आप डायमेंशंस लिख सकते हो इनकी, ठीक है, सो नाउ यू कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स, जैसे m के लिए, ठीक है, t के लिए और l के लिए, ठीक है, तो इसके बाद बेटा आपको कंटिन्यू करना होगा, आई थिंक टाइम हो गया है, मुझे भी ज्वाइन करना है उसको, यस सर कर ठीक लेंगे है, सर। सो यू कैन सी द पाई टर्म, पाई 1 टर्म मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगी आपके पास क्यू अपॉन एन डी क्यूब, यस सर। कुछ इस तरह से पाई टर्म आएगी 1, ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट एन इज पाई टर्म्स आर 5,